بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ آپ کے آسانی اور سہولت کے لیے سلیبس کے سارے ویڈیوز تیار کیے گئے ہیں، صرف اور صرف آپ کی سہولت کے لیے، تاکہ آپ ہر ایگزام میں 99 اسکور کر سکیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس کوشچن آنسرز کے جو بک میری طرف سے لکھی گئی ہے، ہم نے جو کتاب لکھی ہے وہ کتاب بھی لے لیں تاکہ آپ کو پڑھنے میں آسانی ہو۔ اور سارے ویڈیوز کی لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ وہاں سے پورے ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں۔ اور ایک درخواست آپ سے یہ ہے کہ آپ ہمارے سارے ویڈیوز کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، صرف اس وجہ سے نہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی، بلکہ اس وجہ سے کہ اگر آپ سبسکرائب کریں گے انشاءاللہ آپ کو اسلامک ویڈیوز بھی ملتے رہیں گے۔ تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں پروس کا 3rd لیسن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عربک سلیبس انٹرمیڈیٹ 2nd ایئر، تلنگانہ اسٹیٹ، انڈیا۔ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ انٹرمیڈیٹ 2nd ایئر میں 4 سیکشن پڑھنا ہے۔ آپ کو ٹوٹل 4 سیکشن پڑھنا ہے، جیسے آپ کو یہاں پہ اسکرین پہ دکھائی دے رہا ہے۔ سیکشن نمبر 1 پروس، اور سیکشن نمبر 2 پوئٹری، سیکشن نمبر 3 گرامر، اور سیکشن نمبر 4 نان ڈیٹیل۔ یہ 4 سیکشن آپ کو ٹوٹل عربک سلیبس کے لیے پڑھنا ہے، اور ہر سیکشن میں 6 لیسنز ہے، لیکن نان ڈیٹیل میں 3 لیسن ہے 2nd ایئر میں۔ انشاءاللہ ہم پوری تفصیل سے پڑھیں گے، اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے۔ تو ابھی آپ کو پڑھنا ہے پروس۔ پروس میں بھی 6 لیسن ہے، جیسے آپ کو شاید معلوم ہے، آپ کے استاد محترم نے آپ کو سمجھایا ہے اور پڑھائے ہیں۔ پروس میں ٹوٹل 6 لیسن ہے۔ 2 لیسن کے ویڈیوز تیار ہو چکے ہیں، شاید آپ دیکھ بھی لیے ہوں گے۔ اگر نہ دیکھے ہو تو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ وہاں سے پورے ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں سیریل وائز۔ فرسٹ لیسن کا نام ہے دروس من القرآن الکریم، 2nd لیسن کا نام ہے دروس من الاحادیث الشریفہ، 3rd لیسن کا نام ہے مظاہر العالم، 4th لیسن کا نام ہے ماذا تحب ان تکون، 5th لیسن کا نام ہے المرأة فی ظل الاسلام، 6th لیسن کا نام ہے خدمت الوالدین۔ یہ 6 لیسن آپ کو پروس میں پڑھنا ہے، جن میں سے 2 لیسن آپ پڑھ چکے ہیں، اور یہ ویڈیو بن چکی ہے، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ ہم اب پڑھنے والے ہیں تیسرا لیسن۔ اس لیسن کا نام ہے مظاہر العالم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی جو آپ لیسن پڑھ رہے تھے اس لیسن کا نام ہے مظاہر العالم۔ اس لیسن میں استاد محترم اپنی کلاس میں داخل ہوئے، اور جیسے ہی استاد کلاس میں آئے سب اسٹوڈنٹس ٹھہر کر سلام کرے، اور استاد محترم اپنے اسٹوڈنٹس کو بیٹھنے کے لیے کہے، اور اس کے بعد سبق پڑھاتے ہوئے کہنے لگے کہ آج میں اللہ کی قدرت کو بیان کروں گا۔ استاد محترم کلاس میں اللہ کی قدرت کو بیان کرے کہ اللہ کی قدرت کیا ہے، اللہ کی عظمت کیا ہے، اللہ کی شان کیا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب ہم کو اللہ کی قدرت، اللہ کی عظمت، اللہ کی شان معلوم ہوگی تو اللہ کی محبت دل میں پیدا ہوگی۔ اس وجہ سے استاد محترم کلاس میں آ کر اللہ کی قدرت کو بیان کرنے لگے، اور کہنے لگے کہ دیکھو بچوں، آسمان کو کس نے بنایا؟ آسمان کو اللہ نے بنایا، اور اتنا بڑا بنا، بغیر پلر کے، بغیر ستون کے اللہ نے اس کو بلند کیا۔ دن اور رات کو بنایا، رات کو تاریک بنایا، دن کو کام کا ذریعہ بنایا جس میں ہم دن میں کماتے ہیں، اور رات کو سکون کا ذریعہ بنایا۔ اللہ کا ارشاد ہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان کو بلند کر کے
उसके बाद आसमान से बारिश बरसाता है ताकि जमीन पर वो बरस के खेती को उगाए, फलों को उगाए, किस्म किस्म के अनाज को उगाए, ताकि वो अनाज, फल और फूल इंसानों के फायदा का जरिया बने। अल्लाह ने आसमान को भी बनाया और अल्लाह ने जमीन को भी बनाया, और जमीन को न सख्त बनाया न नरम बनाया, और जमीन को ठहरने के लिए अल्लाह ने जमीन पर पहाड़ों का निजाम बनाया ताकि जमीन हरकत ना कर सके, और जमीन को अल्लाह समंदर पर बनाया। अल्लाह की अजीब शान है, अल्लाह की अजीब कुदरत है जिसका हम अंदाजा नहीं कर सकते, जिस तक हमारी अकल नहीं पहुंच सकती। यह अल्लाह तबारक व तआला की जात, यह अल्लाह तबारक व तआला की शान। और अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान बनाकर उसमें सूरज को बनाया, चांद को बनाया, तारों को बनाया, किस्म किस्म के सैयारों को अल्लाह ने बनाया जिसकी गिनती आज तक कोई शुमार नहीं कर सका। यह अल्लाह तबारक व तआला की शान और अल्लाह की ऐसे बनाया ताकि अल्लाह को हम पहचाने और अल्लाह की कुदरत को मालूम करें और अल्लाह पर ईमान लाएं। तो ये थी समरी उर्दू की। आप अपने ओन से भी लिख सकते हैं, और जिसको इंग्लिश में समरी लिखना हो, इसके बाद इंग्लिश में समरी मौजूद है, वो देखकर इंग्लिश में समरी लिख सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये है समरी इंग्लिश में मज़ाहिरुल आलम। जो इंग्लिश समझते हैं वो ये समरी इंग्लिश में लिख सकते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि इंग्लिश समरी ओन लैंग्वेज में लिख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ समरी ओन लैंग्वेज में लिख सकते हैं, चाहे इंग्लिश में लिखे या उर्दू में लिखे या अरबिक में लिखे। लेकिन एक बात याद रखें, रोमन स्क्रिप्ट हरगिज यूज ना करे। पेपर में, अरबिक पेपर में किसी भी जगह रोमन इस्तेमाल ना करें, रोमन में ना लिखें, वरना आपके मार्क्स कट हो सकते हैं। उसके बाद हमको पढ़ना है एक्सरसाइज। कुछ बिट है वो बिट पढ़ेंगे, लेकिन कौन से बिट फाइनल एग्जाम में आएंगे और किस बिट में कौन से क्वेश्चंस होंगे, उसके लिए आपको जरूरी है कि वो सारे वीडियोस देखें जो एग्जाम्स की तैयारी के लिए बनाए गए। तो चलिए, यहां पे हमको बिट दिखाई दे रही है वर्ड मीनिंग। वर्ड मीनिंग की बिट हमको अब पढ़नी है। फर्स्ट वर्ड है दखला। दखला के माने हैं अंदर आना, दाखिल होना। अल फसल, अल फसल कहते हैं क्लास को जहां पर स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। अत्तुल्लाबु, अत्तुल्लाबु कहते हैं स्टूडेंट्स, पढ़ाई करने वाले। अल औलाद, बच्चे। इस्माऊ, गौर से सुनो। रगबतुन, शौक। नक़रउ, हम पढ़ते हैं। उसके बाद एक वर्ड है मज़ाहिर। मज़ाहिर सारी दुनिया में दिखने वाली चीजें जिसे अल्लाह ने बनाया हो, मखलूक़ात। बदा, बदा के माने हैं शुरू करना, शुरू किया। अन्नार, अन्नार के माने हैं आग। यहां पे शायद इंग्लिश में वर्ड गलत आ गया, अन्नार के माने हैं आग। रफ़अहा, बुलंद करना। रफ़अहा के माने हैं बुलंद करना। जाला, जाला के माने हैं बनाना। अल क़मर, अल क़मर के माने हैं चांद। जिया, जिया के माने हैं रोशनी। नहारुन, नहारुन के माने हैं दिन। और 8 वन है अन यज़कुरा, याद करना। इसके बाद और कुछ वर्ड हैं जो वर्ड मीनिंग की बिट के ही है। यस्कुनु, यस्कुनु के माने हैं रहता है। तामलूना, वो तुम लोग काम करते हो। तरकुदूना, तुम लोग सोते हो। मिहादन, झूला। खामा, खड़ा होना। जलसू, वो सब बैठे। निशात, सुकून। मौजूउन, टॉपिक। अल आलम, सारी दुनिया। अत्तुराब, मिट्टी।
अमदुन पिल्लर, सुतून अशम्स सूरज, अन्नुजूम सितारे, अल-लैल रात, अल-अर्ज़ जमीन, बुयूत बहुत से घर, प्लूरल है ये। तो ये थे वर्ड मीनिंग की बीट। उसके बाद हम और आगे बढ़ते हैं। यहां पर और भी कुछ वर्ड है, इंशाल्लाह हम ये भी पढ़ेंगे अभी। हदाइक, हदाइक के माने हैं बाग। अल-फवाके मेवे, अल-जिबाल पहाड़, यंजिलु उतरना, यंबुतु उगना, जमीन से जो चीज झाड़ खेती जो उगती है उसको यंबुतु कहते हैं। अल-अज़हार फूल, तअकुलूना तुम खाते हो, आबा बाप दादा आबा कहते हैं। निअमतुल्लाह अल्लाह की नेमत, निअमतुल्लाह कहते हैं अल्लाह की नेमत। लइन शकरतुम अगर तुम शुक्र अदा करो, लशदीदुन सख्त, मुख्तलिफतुन अलग, अस्सिमार फल, बिहार समंदर, खुदरतुहु अल्लाह की ताकत और अल्लाह की कुदरत, अल अशजार दरख्त। अल मुफीदा, अल मुफीदा कहते हैं फायदा मंद। तफरहूना तुम खुश होते हो, अंतउद्दू तुम गिनना चाहो, शुमार करना चाहो, काउंट करना चाहो। ला तुहसूहा तुम गिन नहीं सकते, काउंट नहीं कर सकते। ला अजीदन्नकुम मैं तुमको इजाफा दूंगा, जायद दूंगा। अजाबी मेरा अजाब। तो ये थे वर्ड मीनिंग जो इस लेसन में आएंगे। उसके बाद और एक बिट हमको पढ़नी है, सिंगुलर और प्लूरल, वाहिद और जमा। अरबी में कहते हैं, उर्दू में कहते हैं वाहिद और जमा। तो ये लाइन पूरी देखिए आप, ये पूरी लाइन सिंगुलर की है और ये लाइन प्लूरल की है। फर्स्ट वन है अल आलिम, अल आलिमूना या अल आलम, अल आलमूना। ये मैं जहां तक समझता हूं अल आलिम है जानने वाला, आलिम। अल आलिमूना उसकी जमा है। अत-तालिब स्टूडेंट पढ़ने वाला। अत-तुल्लाब उसका जमा है, प्लूरल है। अन-नज्म तारा सितारा। अन-नुजूम उसका प्लूरल है। हदीक़तुन बाग, हदाइक प्लूरल। अस्समर फल उसकी जमा है अस्सिमार या अल अस्मार। बहरुन वाहिद उसकी जमा है बिहार। अल मुदर्रिस टीचर, अल मुदर्रिसूना बहुत से टीचर। मौजूउन टॉपिक, मौजूआत उसका प्लूरल। बैतुन घर, बुयूत बहुत से घर। अल फाकिहतु मेवा, अल फवाकिहु बहुत से फ्रूट। अल जबलु पहाड़, अल जिबाल बहुत से पहाड़। अज़्ज़हरु फूल, अल अज़हार प्लूरल। तो ये थी बिट सिंगुलर और प्लूरल की, शायद आपको अच्छी तरह समझ में आ चुका है। तो चलिए हम और आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमको बिट पढ़नी है अपोजिट वर्ड्स। तो यहां देखिए आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं अपोजिट वर्ड्स। फर्स्ट है अशम्स सूरज, उसका अपोजिट है अल कमर चांद। अल अर्ज जमीन, उसके अपोजिट आता है अस्समा आसमान। अल मुफीदा, अल मुफीदतु फायदामंद चीज, उसका अपोजिट है अज़्ज़ारतु नुकसान देने वाली चीज। अशुक्र अल्लाह का शुक्र अदा करना, एहसान मानना। अल कुफ्र इनकार करना,
एहसान न मानना, अल-लैल रात, अन-नहार उसका अपोजिट दिन, ज़ियाउन रोशनी उसका अपोजिट जुल्मतुन, आबा आबा के माने है बाप, बाप दादा, उम्महात माओं को बोलते हैं, माँ दादी परदादी नानी परनानी, अजाब अजाब के माने अजाबी आते हैं तकलीफ, सवाब सवाब अजाब का अपोजिट वर्ड है। तो ये थे अपोजिट वर्ड्स, शायद आपको अच्छी तरह समझ में आ चुका है। तो चलिए हम और आगे बढ़ेंगे। तो ये था, ये बिट हमको जो पढ़ना है वो बहुत ही अहम है, ये बहुत जरूरी है, ये आप देखिए अच्छी तरह। गिव द रेफरेंस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, नीचे लिखे हुए सेंटेंस का रेफरेंस आपको देने का है। तो देखिए यहां पे इस बिट में क्या है, कुछ सेंटेंस आएंगे लेसन्स के, आपको पहचानना होगा कि वो कौन से लेसन के हैं। पहचानने के बाद आपको उसका आंसर लिखना है। और आंसर कैसे लिखेंगे, या आप अच्छी तरह फर्स्ट ईयर में भी पढ़ चुके हैं, उसी तरह क्या है, सिर्फ लेसन्स चेंज है लेकिन आंसर वही है। ये चूंकि लेसन है इस वजह से लेसन का आंसर रहेगा। अय्युहा तुल्लाब अतअलमून मन खलक़ल आलम व मिन अय्यि शैइन इस्मऊ मिन्नी इन्ना अल्लाह तबारक व तआला खलक़हु मिन अत-तुराबि वल हवाई वल माई वन नार। ये लेसन्स, ये बिट आप अपने उस्ताद मोहतरम से अच्छी तरह समझ जाएं। इसमें चंद चीजों का ख्याल है, मैं इंशाल्लाह आखिर में बताऊंगा वो। तो आपको आंसर लिखना है। ये लेसन का नाम है मज़ाहिरुल आलम। जब आप पहचान लेंगे कि ये लाइन, ये सेंटेंस कौन से लेसन का है, तो आपको आंसर लिखना है इस तरह जो यहाँ पे लिखाई दे रहा है। हाज़िही अल इबारतु मिनद दर्स, जबर जेर पेश लगाना नहीं है, जबर जेर पेश आप नहीं लगाना है, लगाए तो कोई हरज नहीं है। हाज़िही माने ये, इबारत माने लाइन, मिन माने की, दर्स माने लेसन। ये लाइन फला लेसन की है, उसके बाद लेसन का नाम लिखना है। क्या है लेसन का नाम? मज़ाहिरुल आलम। उसके बाद जब आप और आगे बढ़ेंगे तो यहां पे नीचे लिखाई दे रहा और एक सेंटेंस है, अय्युहल औलाद उन्जुरू इलल अर्ज़ कैफ़ खलक़हा अल्लाहु तआला वजअलहा मिहादन। ये जब आप पहचान लेंगे कि ये फला लेसन की है तो उसको आपको उसका आंसर लिखना है आपको इस तरह, हाज़िही अल इबारतु मिनद दर्स मज़ाहिरुल आलम। एक बात याद रखें, आप हर एक का आंसर अलग अलग लिखना है। हमारे स्टूडेंट्स में काहिली और सुस्ती की वजह से 2-3 आंसर अगर लिखना है तो 2-3 लाइन एक साथ लिख देते, उसका आंसर एक ही में लिख देते। ये बिल्कुल गलत है, ये लिखने का तरीका नहीं है। आंसर लिखने का तरीका ये नहीं है। हर सेंटेंस अलग लिखिए, जैसे आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। ये एक सेंटेंस अलग है, ये एक सेंटेंस अलग है, हालांकि उसी लेसन का है, चाहे एक ही लेसन के हो, आपको हर सेंटेंस का अलग अलग आंसर लिखना है और इस आंसर की प्रैक्टिस करिए आप। उसके बाद ये एक लाइन है जो आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे, अंतुम ताकुलूना मिनल अस्मारी व तफरहूना मिनल अज़हारी। ये आंसर है। जब आप पहचान लेंगे कि ये लाइन या ये सेंटेंस कौन से लेसन की है, उसके बाद आपको आंसर लिखना है इस तरह, हाज़िही अल इबारतु मिनद दर्स मज़ाहिरुल आलम। ये है बिट रेफरेंस की, पहचानना होगा कि ये कौन से लेसन की है। आप एक बात याद रखें, ये थर्ड लेसन प्रोस का हम पढ़ रहे हैं। ये थर्ड लेसन में आप कैसे पहचानेंगे कि ये लाइन कौन से लेसन की है? तो आप एक बात ध्यान से सुने, वो ये है कि इस लेसन में अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत को बताया गया है। एक उस्ताद अपने स्टूडेंट्स को अल्लाह की कुदरत बता रहे हैं। तो 3 चीजें याद रखिए, एक तो उस्ताद का नाम आएगा और एक स्टूडेंट्स का नाम आएगा अत्तुल्लाब, या अल्लाह का नाम आएगा और जमीन, आसमान, अल अस्मार, अल अशजार, ये वर्ड आएंगे। आप अपने उस्ताद मोहतरम से अच्छी तरह समझ जाएं
कि कौन कौन से वर्ड इसमें आएंगे जिससे आपको पहचानने में आसानी हो। तो ये थी बिट रेफरेंस की। हम और आगे बढ़ेंगे। उसके बाद ये है बिट तो आपको पढ़नी है क्वेश्चन आंसर्स। यहां पे जैसा लिखा हुआ है आंसर द फॉलोइंग, आंसर द क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस आएंगे, उसके आंसर लिखे हुए रहेंगे। मैं आपको हमेशा बताता हूं हर बिट में कि आप अगर ये जानना है कि ये क्वेश्चन आंसर्स कौन से बिट में आएंगे तो आप उसके लिए वो वीडियोस देखें जो एग्जाम्स की तैयारी के लिए बनाए गए हैं। एग्जाम्स की तैयारी के लिए जो वीडियोस बनाए गए हैं वो वीडियोस देखें, और वो सारे वीडियो हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, आप वहां से देखें। मिन अय्यि शैइन खलक़ल्लाहु अल आलम, मिन से, अय्यि कौन से, शै चीज, किस चीज से, पूरा तर्जुमा होगा किस चीज से, खलक़ा पैदा किया, अल्लाह माने अल्लाह, आलम सारी दुनिया को, अल्लाह ने सारी दुनिया को किस चीज से पैदा किया। उसका आंसर है, देखिए मिन अय्यि शैइन हटा दीजिए, इतना क्वेश्चन में जो वर्ड है ये यहां पे हटा दीजिए और बाकी सेम क्वेश्चन कॉपी करिए। ये एक जरा आंसर, कुछ आंसर पूरे अरबिक सिलेबस में मैं समझता हूं 7 या 8 क्वेश्चन के आंसर जरा बड़े हैं। बड़े का मतलब 2 या 3 वर्ड या 4 वर्ड हैं। उसके अलावा सारे क्वेश्चन के आंसर में एक एक वर्ड ऐड करना है जो बहुत ही आसान है। खलक़ल्लाहु अल आलम, खलक़ माने पैदा किया, खलक़ के माने पैदा किया, अल्लाह माने अल्लाह, आलम सारी दुनिया, मिन माने से, अत्तुरा मिट्टी, वौ के माने और, अल हवा हवा, वल मा और पानी, वन नार और आग। अल्लाह तबारक व तआला ने सारी दुनिया को 4 चीजों से पैदा किया, मिट्टी, हवा, पानी और आग। हर चीज में ये इन चारों चीजों में से किसी ना किसी चीज का होना जरूरी है। बस चीजों में 4 भी होते हैं। सेकंड क्वेश्चन है मा काना मौज़ूउद दर्स, मा काना मौज़ूउद दर्स, मा के माने क्या, काना के माने था, मौजू मौजू उन्वान टॉपिक, अदर्स लेसन, लेसन की टॉपिक क्या थी, इस लेसन की टॉपिक क्या है, इस लेसन का नाम क्या है। उसका आंसर यहां पे देखिए, काना माने, यहां पे काना के माने थे असल में था, लेकिन यहां पे है का ही तर्जुमा करेंगे। मौजू टॉपिक, अदर्स लेसन, मज़ाहिरुल आलम, इस लेसन का नाम मज़ाहिरुल आलम है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है जो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, अ जअल फीहा अश-शम्सा वल क़मरा वन नुजुमा ज़ियाअन, अ के माने है क्या, ये क्वेश्चन बढ़ रही है। अ माने क्या, जाला माने बनाया, क्या अल्लाह ने बनाया, यहां पे तर्जुमा करेंगे क्या उसने बनाया, उसने का मतलब अल्लाह ने, फीहा उसमें यानी दुनिया में, क्या अल्लाह ने दुनिया में बनाया है, अश-शम्स सूरज, वल कमर और चांद, वन नुजूम और सितारे, ज़ियाअन के माने है रोशन, क्या अल्लाह तबारक व तआला ने सूरज, चांद और तारों को रोशन बनाया है। उसका आंसर देखिए, क्वेश्चन में जो वर्ड है ये इसको हटा दीजिए और सिर्फ नाम लिखना है, बाकी सेम क्वेश्चन कॉपी करना है। नाम जअल फीहा अश-शम्स वल क़मर वन नुजुम ज़ियाअन, हाँ अल्लाह तबारक व तआला ने सूरज, चांद और तारों को रोशन बनाया है। जाहिर सी बात है, इसमें भी देखिए आप यहाँ पर जबर जेर पेश लगे हुए हैं, आप लिखने की जरूरत नहीं है, लिखे तो कोई हरज नहीं है। मार्क्स आपको पूरे मिलेंगे अगर आप जबर जेर पेश ना लिखें, एराब ना लिखें। मिन ऐना तखरुजुल अज़हारु वल अस्मारु, मिन माने से, ऐना माने कहां, तखरुजु माने निकलते हैं, अल अज़हार माने फूल, वो के माने और, अस्मार माने फल। फूल और फल कहां से निकलते हैं, फूल और फल कहां से निकलते हैं। उसका आंसर है देखिए, मिन ऐना, ये क्वेश्चन वर्ड है, इसको हटा देंगे आप, बाकी सेम क्वेश्चन कॉपी करेंगे। तखरुजु अल अज़हारु वल अस्मारु मिन अल अर्ज़,
तखरुजु निकलते हैं, अल अजहार फूल, वल असमार वो के माने है और, अल असमार के माने फल, मिन के माने से, अल अर्ज माने जमीन। फूल और फल जमीन से निकलते हैं। कहां से निकलते हैं? जमीन से निकलते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन है, हल अल माउ यंजिलु मिनस समा, हल के माने है क्या, अल मा के माने है पानी, यंजिलु माने उतरता है, गिर बरसता है, मिन के माने से, अस्समा के माने आसमान। क्या पानी आसमान से बरसता है? ये हल हटा दीजिए, नाम लिखना है, नाम के बाद सेम क्वेश्चन कॉपी करना है। नाम माने हाँ, अल माउ यंजिलु मिनस समा, हाँ पानी आसमान से बरसता है। एक बात याद रखें, नाम के बाद ये डॉट लिखना ना भूलें आप। शायद मैं समझता हूं आपको ये क्वेश्चन आंसर्स समझ में आ चुके हैं। बहुत आसान है, आप इसकी कम से कम 5 मरतबा प्रैक्टिस करें। जो वर्ड आपको आंसर में लिखना है उसी वर्ड की प्रैक्टिस करें, पूरा करें तो बहुत अच्छा है। उसके बाद हम और आगे बढ़ेंगे। उसके बाद जो बिट हमको पढ़नी है 1 वर्ड क्वेश्चन आंसर्स की है, जो कि बहुत ही आसान है। तो चलिए हम इंशाल्लाह वो भी पढ़ लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, मन खलकल आलमा, मन के माने है कौन, खलका के माने पैदा किया, आलम के माने है दुनिया। दुनिया को किसने पैदा किया? उसका आंसर है अल्लाह। दुनिया को अल्लाह ने पैदा किया। सेकंड क्वेश्चन है, हल खलकल्लाहु अल आलम मिन कुदरतिही, हल के माने है क्या, खलका माने पैदा किया, अल्लाह माने अल्लाह, आलम माने सारी दुनिया, मिन माने से, कुदरती ही अपनी ताकत। क्वेश्चन के पूरे मीनिंग है, क्या अल्लाह ने सारी दुनिया को अपनी कुदरत से पैदा किया? उसका आंसर है नाम, हाँ। उसके बाद और एक क्वेश्चन है, अय्यु शैइन बिगैर अमदिन, अय्यु कौन सी, शै चीज, बिगैर बगैर, अमद पिलर, सुतून कौन सी चीज बगैर पिलर के है? उसका आंसर है देखिए अस्समा, आसमान बगैर पिलर के है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, कैफल अजहार, कैफा के माने है कैसे, अल अजहार के माने फूल, फूल कैसे हैं? उसका आंसर है अल जमीला, फूल बहुत खूबसूरत होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है, मन क़रा अद-दर्स, मन माने कौन, क़रा के माने पढ़े, अद-दर्स माने लेसन, लेसन कौन पढ़े, पढ़े लेसन कौन पढ़े, अल मुअल्लिम लेसन उस्ताद ने पढ़ा। तो ये थे आपके क्वेश्चन आंसर्स 1 वर्ड, एक ही वर्ड में है। ये तो बहुत ही आसान बिट है अगर आप थोड़े प्रैक्टिस करें, वरना ये भी बहुत मुश्किल हो जाएंगे। उसके बाद हम और आगे बढ़ते हैं। यहां पे देखिए आपको लिखा हुआ है, fill in the blanks with suitable words given below, नीचे दिए गए हुए वर्ड ब्लैंक्स में कंप्लीट करना है। चलिए हम इंशाल्लाह ये भी पढ़ लेंगे, बहुत आसान है। एक बात यहाँ पे ये बता दूं कि ये fill in the blanks कौन से बिट में आएंगे, उसके लिए मैं आपको फिर यही कहूंगा कि आप मेरे वो सारे वीडियोस देखें जो एग्जाम्स की तैयारी के लिए बनाए गए, जो इंशाल्लाह आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। जिससे उसमें रोमन स्क्रिप्ट में भी लिखा हुआ आपके पढ़ने के आसानी के लिए, एग्जाम में लिखने के लिए नहीं। फज़कुरु ब्याश अल्लाह अलैकुम, उस यहाँ फिल करना है निअमतुन, आप अल्लाह की नेमत को याद करो। उसके बाद सेकंड सेंटेंस है, लइन शकरतुम डैश लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं नेमत में इजाफा करूंगा और नेमतें दूंगा। थर्ड वन है, वयखरुजु मिनहा डैश अल जमीला, और जमीन से निकलते हैं खूबसूरत क्या, अल अजहार फूल। फोर्थ वन है डैश अल मुदर्रिस अल फसला, उसका आंसर है देखिए दखल अल मुदर्रिस अल फसला, दखला के माने दाखिल हुआ, मुदर्रिस माने सर लेक्चरर प्रोफेसर, अल फसल माने क्लास, क्लास में दाखिल हुआ।
5th वन है अतअलमूना मन डैश अल आलम, क्या आप जानते हैं डैश खलक माने पैदा किया, आप जानते हैं कि सारी दुनिया को किसने पैदा किया। ये तो एक क्वेश्चन है, उसका आंसर है अल्लाह, लेकिन यहाँ पे आंसर लिखना है आपको खलका, फिल इन द ब्लैंक्स में। तो ये थी आपकी फिल इन द ब्लैंक्स की बिट। तो चलिए हम और आगे बढ़ेंगे, शायद मैं समझता हूँ यहीं पर आखिर है, ये यहीं पर आखिर है। आपसे गुजारिश है हमें अपने खास दुआओं में याद रखें और ये पूरे वीडियोस अपने दोस्तों तक शेयर करें। इंशाल्लाह हम दूसरे वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।